how to balance my preparation in UPSC so that I will be in condition to cover my current affairs along with static portion. If this is something that you are struggling with, then this is the right place to be. Hello guys, my name is Avinash and today we are going to discuss about how to balance time while preparing for UPSC, especially while tackling current affairs. So let's get started. Guys, we had already covered about what to read, what not to read. Let me zoom in. We had already covered about first topic, that is what to read, then what not to read in the newspaper. We had also covered about note making hacks, like how we should move forward with note making. Today we are starting off with the next topic, that is how we should balance our time so that we will be in condition to cover the current affairs section along with static part. So now let's get started off with it. And guys, if you hadn't watched earlier videos, then I request you to just go back and watch the earlier videos. You can find the link at the I button displayed on the screen. So right now, just let's dig deep into balancing time part. So guys, इट्स वेरी क्रूशल कि हमें टाइम को बैलेंस करके चलना है, बिकॉज हमारे पास इतना सारा पोर्शन है, इतना सारा सिलेबस है, हमें सारी चीज़ें कवर करनी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग ओवर एम्फेसाइज करें करंट अफेयर के ऊपर. तो ये बैलेंसिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? फर्स्टली कम्स अबाउट टाइम ब्लॉक इज वे फॉरवर्ड. वी कैन फॉरवर्ड विथ टाइम ब्लॉक. टाइम ब्लॉक का स्ट्रेटेजी क्या रहता है? For instance, I do know in the morning sessions I am more productive. So in the morning I should block my time for the subject that I feel need more time or need more focus. For instance, I feel कि suppose मेरा geography week है and I think कि मेरे को geography के ऊपर morning में time देना है, और मैंने वो टाइम पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया कि उस टाइम में मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ और नहीं करूँगी. मैं सिर्फ और सिर्फ geography का ही वो 2 घंटे का सेशन इन अर्ली मॉर्निंग रखूँगी, 5 to 7 या जो भी आपको टाइम सूट करे. सो दिस इज द टेक्निक ऑफ टाइम ब्लॉकिंग. वट विल बी द बेनिफिट कि आपको आपके माइंड इस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि उसे पता है कि मुझे इस समय पे यही काम करना है. तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिसाइडिंग कि अच्छा मुझे पहले क्या करना है, अच्छा नहीं आज तो ये इंपॉर्टेंट है, आई हैड मिस द अर्लियर टारगेट्स. फॉर इंस्टेंस यू हैड टारगेट येस्टरडे कि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करना था, पॉलिटी का, and somehow because of any reason you were not able to complete that target, then your mind will say कि morning में let me finish that thing first and then I will move forward with the remaining topic or the design topic for today. But with this time block technique, what is required कि चाहे last आपका target छूटा था, no issues, you have to firstly go with the time schedule that you had made. For instance, geography in morning, then definitely go with geography in the morning. Don't think too much about the remaining part or the remaining topic that you had left in the yesterday's session. So this is basic technique for time block. First benefit, more focus. Second benefit, more like straightforward because you do know कि आपको पढ़ना क्या है. Then comes dedicated time. हमें एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, बट along with that it's equally important कि हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेक शेड्यूल हो. हमारे जो टाइम है वो डेडिकेटेड होना चाहिए कि हमें इतने आवर्स का, फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सेइंग लाइक आई विल गो विद टाइम ब्लॉक ऑफ 2 hours फॉर माई जोग्राफी स्टडी, देन आफ्टर 2 hours आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ एंड आई विल गिव सम डेडिकेटेड टाइम फॉर माई पर्सनल fulfillment. For instance, that can be any sort of hobby or like spending time with family or just chilling out, कुछ भी. हैव 30 minutes ब्रेक, जो कि 30 minutes का ही होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट थिंग कि वो 30 minutes का डेडिकेटेड ब्रेक होना चाहिए आपके लिए, जिसमें यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर अदर स्टफ. फॉर इंस्टेंस कि आप नहा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, दैट्स डिफरेंट. उसके लिए आपका एक वो नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम होना चाहिए. बट दैट 30 minutes मीन टोटली रिलैक्सिंग मोड. जिस चीज़ में आपको लगे कि यू फील मोर रिलैक्स, यू कैन मूव फॉरवर्ड विद that, but have dedicated time for break also. सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर उसके साथ ब्रेक भी रखना है. Then read what is to read. For instance, we are focusing here right now about the newspaper, the Hindu newspaper. So in the Hindu newspaper, we had already discussed about what we have to read, what we have not to read. तो वो सारी चीज़ें हमने already discuss कर ली है. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि
आपका टाइम ब्लॉक है, आपके पास डेडिकेटेड टाइम ब्रेक्स है। अब उसके बाद जब आप करंट अफेयर्स का सेशंस ले रहे हो, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसी चीज़ पे फोकस कीजिए जिस चीज़ पे आपको करना है, जो कि रिक्वायरमेंट है आपके एग्जामिनेशन का। जैसे एडिटोरियल सेक्शंस पे आपको स्पेशली फोकस करना है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि फ्रंट पेज को आपको उसका एक स्कैन आउट करना है कि क्या क्या न्यूज़ पढ़नी है, पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है। तो ऐसी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देन द आई आइकन on the screen will be showing you the link for that video. You should go there, firstly watch that and come to this video later on. देन कम क्विक एंड कंसाइज नोट्स, बिकॉज नोट्स आर वेरी क्रूशल। और मैंने नोट मेकिंग का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और मैंने आपको इसलिए पहले यही समझाया कि नोट मेकिंग करना कैसे है, और वो कंसाइज होना चाहिए। लंबे लंबे चिट्ठे नहीं लिखने हैं, बहुत बड़े बड़े एसेज नहीं लिखने हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, देन यू हैव टू जस्ट पुट इट असाइड एंड देन मेक नोट्स ऑफ दैट यूजिंग योर ब्रेन, नॉट यूजिंग ओनली योर आईज, और वो आप स्कैन कर रहे हो और लिख रहे हो। नो, you have to read newspaper first and then have to write it in your language, whatever you had remembered or gathered information. ऐसा मत सोचना कि मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा, let me just go back to newspaper, read it once and then make notes. No, that's not required. What is required कि आप पढ़ो, बंद करके रखो, और फिर एनालाइज, उससे आपको खुद को एनालाइज हो रहा है कि जितना पढ़ा था उसमें से कितना आपको रिटेन रहा है, क्योंकि रिटेनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते जाओ एंड यू आर नॉट इन कंडीशन टू रिकॉल हैड रेड, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, quick and concise notes, and you have to follow same strategy that I had discussed in the earlier video. Then come weekly recap. You have to go for weekly recap, मतलब एक संडे का दिन रखिए, because संडे को न्यूज़पेपर में you can definitely just skip lot of things. तो आप संडे का दिन रखिए, संडे के दिन में जो आपने पूरे वीक में नोट्स बनाया उसे एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपने जिस तरह से मैंने नोट मेकिंग टेक्निक से बताया है, तो आपके 6 दिन के न्यूज़पेपर के नोट 6 पेजेस के भी नहीं बनेंगे फॉर श्योर। तो आपको उसको रिवाइज करने में मैक्सिमम 10-15 मिनट्स लगेंगे, और 10-15 मिनट्स में आपने वो सारे नोट्स रिवाइज करने हैं वीक में एक बार एटलीस्ट। देन कम्स मैक्सिमम आपको करंट अफेयर के लिए 2 आवर्स देना है, और वो 2 आवर्स के ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि हमें 2 आवर्स में सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, हमें उसका जो वीकली मैगजीन होता है हमें वो भी फॉलो अप करना है, और उसके साथ साथ हमें डेफिनेटली उसका रिकैप लेते रहना है, उसे रिकॉल करते रहना है। ये सब कुछ 2 घंटे में करना है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं पहले की, तो आपको लगेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बोल रही हैं कि इतना नहीं हो सकता। बट इफ़ यू हैड गॉन थ्रू अर्लियर वीडियोज, देन यू मस्ट बी इन कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि ये हो सकता है और यही करना है, बिकॉज ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है करंट अफेयर्स के ऊपर भी। So this maximum 2 hours time includes newspaper reading and note making itself, and definitely magazine जो होती है हमारी, जो हम करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं, उसे भी हमें रिवाइज करना है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे, तो जब हम टाइम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो टाइम ब्लॉक से आप अपने सेशंस को ब्लॉक कर सकते हो कि इस टाइम पे मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। एंड सेकेंड थिंग, आप ब्रेक का अपना शेड्यूल रख सकते हो, एंड बी वेरी कॉशियस कि अगर आप 30 मिनट्स का ब्रेक के लिए गए हो तो वो 31 नहीं होना चाहिए। 29 हो रहा है, इट्स ओके, पर 31 मत करना, क्योंकि जिस दिन से वो 1 मिनट भी ऊपर होना शुरू हुआ, तो वो 1-1 मिनट करके 1 घंटे का ब्रेक बन जाएगा एक दिन ज़रूर। तो आपको अपने ब्रेक्स के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। जितना पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना ब्रेक्स के ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। देन डेफिनेटली यू हैव टू बी कॉशियस कि हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देन यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू डिवोट मैक्सिमम 2 आवर्स ईच डे फॉर न्यूज़पेपर, एंड यू मस्ट नॉट गो फॉर लाइक एक्सटेंडिंग आवर्स की ठीक है लेट मी गो फॉर 3 आवर्स और समथिंग। नो, दैट शुड नॉट बी देयर। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, देन डेफिनेटली यू विल बी इन कंडीशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, एंड यू विल बी इन कंडीशन टू रिमेंबर, मेमोराइज, ईच एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस if you are in condition to analyze and actually implement on the steps that I had showed in front of you. So guys, this is my humble request, just go with it and just work on these pointers if you genuinely want to balance your time with current affairs.
So this was it for this particular video, and thank you so much guys for being there. If you had not subscribed to my channel, then I request you to just subscribe to my channel and also hit the bell icon so that all the notification will be delivered to you. Along with that guys, if you want to know more about how to tackle UPSC, how to move forward with it, how to make customized time plan for yourself, then do register for my bootcamp, that the link of which you can find in the description below. So just register there and I will be more than happy to help you out while making your time schedule according to your circumstances, according to your requirement. So that was it for today. Thank you so much for being there and I will see you in the next video. Till then, bye bye.